Good morning and welcome to the beautiful session on Savior siblings. Yes, it is very interesting and very important sessions for your prelims as well as for your mains examination. Okay, so be very attentive in this session. Vikesh Chavan, morning. Ritika, good morning. Ritika, very good morning. Kapil and Khushbu. So let's start our session. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. On Unacademy, you will get daily live classes. These daily live classes are very crucial and very important for your prelims as well as mains preparation. Structured courses are mainly available with the Plus or Iconic platform, जहाँ पे आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में या स्ट्रक्चर्ड वे में होता है. We are conducting live test and quiz regularly every day at 8 a.m. on Unacademy Learning app. In my case, then everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything. Still, if you don't have Unacademy Learning app, what you need to do, you need to download this app so that you can enjoy free learning, as well as if you want a structured plan or structured way में study करना है, you can enjoy that through Plus subscription or Iconic. This is about me, guys. You already know about me. This is my Telegram channel. If you want notes of the sessions or the जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अगर आपको notes चाहिए तो what you need to do. Good morning, Shikhar Bhatnagar. Very good morning. And this is my Telegram channel. Just subscribe to this Telegram channel. It is free of cost. This is my Unacademy profile. What you need to do, you need to follow this Unacademy profile of mine and dedicate your hats to me on Unacademy Learning app. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys. Thank you very much. When you are going for a Plus subscription of 12 months, instead of paying 49,500 rupees, you will be paying 44,550 because this code SKUS code will give you 10% discount. And in case of a 12-month subscription, instead of paying 69,500 rupees for Iconic, you are paying only 62,550 because SKUS code will give you 10% discount. Okay, then these are the options that are available with Unacademy. These are the UPSC CSE optional subscription fees, UPSC CSE GS subscription fees, and you need to remember this code. SKUS code is very crucial if you want 10% discount on any subscription of Unacademy. Akshayam Pillai, very good morning. So today we are going to start our 15 October current affairs session. Just give me a minute, guys. Okay, let's start. So there was one news on 15th of October in the Hindu. That news talked about a sister born to save a ailing brother, and we called that a savior sibling. Means that sister became the savior of her brother who was suffering with some disease. Now we are going to discuss each and everything in detail. Don't worry about that. ये पूरी concept हम discuss करेंगे. But before we go ahead with this concept, I want to clearly explain few things to you. These things we already discussed in our previous current affairs sessions. For example, first thing that you need to know to understand what I'm going to explain is stem cell. So guys, in our body there are 2 or 3 types of cell, basically on the basis of what type of cells they can generate. One is stem cell. These stem cells, they can generate any type of cell, and even there are subtypes of these stem cells. Okay, तो जिसमें हमने डिस्कस किया था मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, राइट. सो इसमें हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्लूरीपोटेंट stem cell, because these pluripotent stem cell, they can generate different types of cells that are present in our body. Okay, in case of adults, these pluripotent stem cells are mainly present in the bone marrow. If you have any idea, our RBCs, red blood cells, they are produced in our bone marrow. Our WBCs, white blood cells, they are produced in bone marrow. Platelets, they are produced in bone marrow. So what we call these stem cells that are present in the bone marrow, we call them hemopoietic stem cell, because they are responsible for producing
cells of the blood, that is RBC, WBC and platelets. So first point, I hope you got what is stem cell. So stem cells are the cells which can generate any type of cell in our body. There is another type of cell जिसे हम कहते हैं somatic cell. Now these somatic cells are basically, these cells can generate their own type only. Means for example, I will give you the skin cells example. Cells in the skin, they are somatic cell because when they multiply they can generate only skin cell. Means आप skin cell से सेल्स ऑफ आईज नहीं जनरेट कर सकते, सेल्स ऑफ ब्रेन नहीं जनरेट कर सकते, हिपेटोसाइट दैट इज सेल्स ऑफ लीवर जनरेट नहीं कर सकते. बट अगर आप स्टेम सेल यूज कर रहे हो एंड इफ दैट स्टेम सेल इज मल्टीपोटेंट, in that case that stem cell, a single cell can create brain cell, a single cell can create heart cell जिसे हम cardiac cell कहते हैं, a single cell can create cells of the bone. So everything that can be, that is present in our body, every type of cell that is present in our body is generated by stem cell. Instead somatic cell can generate only their own types of cell. There is another group of cells, we call them germ cells. Now these germ cells are responsible for reproduction. In case of male, sperm is an example of germ cell. In case of female, egg or ovum is an example of germ cell. So what we need to do is, for in case of adult, stem cells are present in bone marrow and these stem cells can be used in stem cell therapy. These stem cells that are present in the bone marrow can be used in stem cell therapy. तो यहाँ पे this term Xavier sibling is an example of stem cell therapy. Clear यहाँ पे? From this slide I just wanted to explain you two things. What is a stem cell? That I explained you. If you understood, please say yes in the comment. And the second point that I wanted to explain is Xavier sibling is an example of stem cell therapy. Now stem cell therapy का मतलब क्या है? Stem cell therapy का मतलब क्या है? In this case we are using stem cell for treatment. Okay, that's why we call this a stem cell therapy. Clear? ये हो गया हमारा stem cell और stem cell therapy के बारे में. Now we are going ahead. तो यहाँ आप देख सकते हो, under Xavier sibling experiment, baby's bone marrow was used to save child. So when we say baby's bone marrow was used to save child, means baby's stem cells were used to save the child. In this case child is her brother. We will discuss this in detail, don't worry about that. But now onward we are not going to discuss about the stem cells. Stem cell ये concept आपने समझ ली. अब आपको समझना है what exactly is done under the Xavier sibling experiment. तो मैं पहले आपको एक स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ इस पूरे न्यूज़ की. तो there is a couple in Gujarat and that couple has one girl and a boy. जब वो जो boy है उनका, that boy had some issues with his health. ठीक है, he was unable to achieve the growth milestones that normally every child achieves. And when they went to the doctor told them that their boy or their baby is suffering through thalassemia. Now what is thalassemia? You will be acquainted with thalassemia in detail, don't worry about that. So doctors told them that their child has thalassemia major and there is only two types of treatment available for thalassemia. One is regular blood transfusion, means that child needed blood transfusion after like a month, and जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा that duration will reduce. जैसे जब वो child है तो he will need blood transfusion after every 30 days. But जैसे ही उसका एज suppose 10 years का हो गया, he might need blood transfusion after every 10 days, which is very problematic. So this is one solution to treat this thalassemia, and second solution is bone marrow transplantation. So doctors advise them to go for the bone marrow transplantation. But to transplant bone, the HLA, there is one compatibility complex in humans. Okay, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे. या आप सिंपली ये बात करो कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए मैचिंग करना जरूरी है ना, उसी तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए देयर इज वन टेस्ट जिसे हम कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट कहते हैं, मैचिंग कहते हैं.
तो उसके मॉम का मैच नहीं हो रहा था उस बेबी के साथ, उसके डैड का मैच नहीं हो रहा था, उसके सिस्टर का मैच नहीं हो रहा था। तो उस बेबी का जो भी कॉम्पेटिबिलिटी था बोन मैरो का, वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा था। सो द मॉम एंड डैड वेयर वेरी वरीड, एंड देन दे केम अक्रॉस वन डॉक्टर जिनका सरनेम है बैंकर, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, एंड दे अप्रोच्ड दैट बैंकर और दैट डॉक्टर, एंड दैट डॉक्टर was like, he knows the Xavier sibling experiment, so that doctor agreed to go ahead with this experiment। तो ये पूरी स्टोरी है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, पहले मदर और फादर, वो जो चाइल्ड था जिसे थैलेसीमिया मेजर नाम का डिसीज था, ओके, मदर एंड फादर, इन दोनों के मदर से एग लिए गए, फादर से स्पर्म लिए गए और उनको फर्टिलाइज किया गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लोज टू उन्होंने 18 एम्ब्रियोज डेवलप किए, 18 एम्ब्रियोज, मतलब उसमें से एक भी एम्ब्रियो मॉम के यूटेरस में ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, क्योंकि इन 18 एम्ब्रियो में से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो का जो बोन मैरो या जेनेटिक कंपैटिबिलिटी थी, जिसे हम HLA कंपैटिबिलिटी कहते हैं, ये कंपैटिबिलिटी सिर्फ एक एम्ब्रियो की थी विथ द बॉय, ओके। तो फिर इन्होंने बाकी 17 एम्ब्रियो क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और इस एक एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया मदर के यूटेरस में। They transplanted this into the mother's uterus। अब उस मदर के यूटेरस में जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया गया वो एक लड़की थी, और जब उसकी बर्थ हुई, उसकी बर्थ के बाद when she achieved the milestone of 10 किलोग्राम वेट, उसका बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसप्लांट किया गया उसके ब्रदर में, and now her brother do not need blood transfusion anymore। So what we did, we treated the thalassemia disease of a young boy with the bone marrow transplantation from her sister, but that sister was conceived only to treat her brother। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टर की डेथ होगी, नो, शी इजीली शी डोनेटेड द बोन मैरो, और अब उसका बोन मैरो फिर से डेवलप भी हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट ये बेबी का बर्थ ही क्यों हुआ, इस बेबी को उनके मॉम डैड ने कंसीव ही क्यों किया, बिकॉज दे वांटेड टू सेव देयर चाइल्ड, जो ऑलरेडी कुछ 5 या 6 साल का था, उसे सेव करने के लिए इस बेबी को क्या किया गया, कंसीव किया गया। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हर सैवियर सिबलिंग। पूरी स्टोरी समझ में आई? अब एक बार आपको अगर स्टोरी समझ में आ गई है तो ये टेक्निकलिटीज अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्सप्लेन करना। तो सिंपल स्टोरी का क्रक्स क्या है कि लड़के को बचाने के लिए इन्होंने एक बेबी कंसीव किया, उस बेबी की बर्थ होने के बाद और एक पर्टिकुलर एज के बाद उस बेबी का बोन मैरो निकाल कर उनके लड़के में डाला गया। नाउ दैट लड़का means that boy of this couple is healthy and now he is treated with thalassemia, that's it। ये सिंपल सी स्टोरी है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, सो फर्स्ट थिंग, इट इज इंडियाज फर्स्ट सैवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। पूरे न्यूज में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि सैवियर सिबलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। क्यों नहीं मेंशन किया है, क्योंकि फिर यूपीएससी को चांस मिल जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम सेल थेरेपी, और आपको आंसर ऑप्शन में सैवियर सिबलिंग होगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सैवियर सिबलिंग पूरी न्यूज में कहीं पे भी स्टेम सेल का भी मेंशन नहीं है और स्टेम सेल थेरेपी का भी मेंशन नहीं है। दे मेंशन्ड बोन मैरो, और बोन मैरो डोनेट ही किया जा रहा है बिकॉज बोन मैरो हैज स्टेम सेल। क्लियर? सो यहां से पहला पॉइंट याद रखिए, इट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सैवियर सिबलिंग एट इन इंडिया, इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सैवियर सिबलिंग, एंड इट इज अ सक्सेस, फेल नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा यूके में हमने स्टडी किया था 3 पेरेंट बेबी, उसी को हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी, करेक्ट, इफ यू रिमेंबर, एंड यूपीएससी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस इन 2020 प्रीलिम्स इन द सेम वे। यूपीएससी कैन, अब मैं यहाँ पे आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, उसके नाम बता रहा हूँ जिसपे प्रीलिम 2021 में क्वेश्चन आ सकता है। सो फर्स्ट टॉपिक इज stem cell therapy। UPSC can ask a question on stem cell therapy in prelims as well as in mains examination। मेंस में स्टेम सेल थेरेपी पे 2020 में भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रीलिम की अगर हम बात करें, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2021।
So you should be well aware of stem cell, different types of stem cell and stem cell therapy. वो मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, फ्यूचर में भी मैं आपका रिवीजन करा लूंगा, ठीक है, क्लियर। सो सेवियर सिबलिंग, इंडियाज फर्स्ट सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट, अ सक्सेस, से डॉक्टर। 1-year-old sibling, that is that girl conceived by her mother just to save the boy, had saved her brother's life. उस लड़की ने अपने भाई की जान बचाई by donating her bone marrow. A 1-year girl, she donated her bone marrow to save her brother. Now why she donated her bone marrow? Because her bone marrow has stem cell. Which type of stem cells are present in her bone marrow? So the pluripotent stem cells are present in her bone marrow. कौन सी pluripotent stem cell? तो hematopoietic stem cells are present in her bone marrow, and that bone marrow is donated by this 1-year-old sibling or girl to save her brother's life. Simple. Now the name of that girl is Kavya. So इसकी lifetime मतलब brother is oblique to her, right, for lifetime. So Kavya was conceived by her parents through in vitro fertilization. In vitro fertilization का मतलब क्या होता है? Egg and sperm will be fertilized in a test tube or in a glass. Vitro का मतलब होता है glass. मतलब नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द वूम ऑफ द मदर, बट हियर द फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस इन द ग्लास, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू सेव हर ब्रदर. देखिए, शी वाज कंसीव्ड बाय हर पेरेंट्स थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू सेव हर ब्रदर. द नेम ऑफ हर ब्रदर इज अभिजीत सोलंकी, जिसे कौन सा डिसीज था? थैलेसीमिया. लेकिन थैलेसीमिया में भी अलग अलग टाइप है, उसमें से उसे था थैलेसीमिया मेजर. अब थैलेसीमिया मेजर क्या होता है, थैलेसीमिया माइनर क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डोंट वरी. ओके फाइन. नाउ टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? Everything is clear to every student? Yes, please say yes in the comment box. We are going ahead. Okay, so यहाँ देखिए, in vitro fertilization, it is a process of fertilization where egg, female gamete, is combined with a sperm, male gamete, outside the body in glass. Okay, the process involves monitoring and stimulating a woman's ovulatory process, woman's की ovaries and letting sperm fertilize them in a liquid in the laboratory. तो ये जो ग्लास होता है इसमें लिक्विड होता है, और उस लिक्विड में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्लियर? एंड वंस दैट एग एंड स्पर्म दे आर फर्टिलाइज्ड, उनसे जो पहली सेल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट zygote. This zygote undergoes embryo culture for 2 to 6 days. This zygote will grow in a culture for 2 to 6 days, and after 2 to 6 days, that thank you Anindita saying thank you very much. After 2 to 6 days it is implanted in the same or another woman's uterus and it is successful pregnancy. चलिए अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ. नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द नॉर्मल प्रेगनेंसी. दिस इज द मदर्स यूटेरस. ठीक है, दिस इज द मदर्स यूटेरस एंड दिस होता क्या है कि स्पर्म्स विल बी डिपॉजिटेड हियर. Father deposits his sperms into the vagina. These sperms will travel from the vagina to the cervix through the uterus, और uterus से travel करते करते यहाँ आप देखिए these sperms will reach here through this fallopian tube like structure जो है इसे fallopian tube कहते हैं. यहाँ पहुँचेंगे तो स्पर्म आ गए फादर के बॉडी से वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब से यहाँ तक, और ये ओवम आ गया मदर की ओवरी से. अब ये ओवम और ये स्पर्म, दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द ओवम, इन दोनों का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ. कहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन? इन द मदर्स वूम इन द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, इन द मदर्स वूम इन द फैलोपियन ट्यूब. अनुराग चौधरी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, जस्ट फोकस. ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्स्ट सेल बनती है उसे हम कहते हैं जाइगोट. अब ये जाइगोट जो है पहले एक सिंगल सेल था, इससे 2 सेल बनी. देखिए 1 day 2 सेल,
2 डे 4 सेल एम्ब्रियो, 3 डे के बाद इसी एम्ब्रियो को हम मोरूला कहते हैं, 5 डेज के बाद इसी एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ इम्प्लांट हुआ? मदर के यूटेरस में, जिसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। दिस इज नेचुरल प्रोसेस। बट इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेम थिंग, दिस, या फिर आप कह सकते हो अप टू दिस लेवल थिंग्स हैपन आउटसाइड द बॉडी। हियर हमने क्या किया? पहले ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी, हमने ओवरीज को स्टिमुलेट किया, ठीक है। वंस यू स्टिमुलेट ओवरी, ओवरीज विल रिलीज एग, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट। तो देखिए एग रिलीज होती है, हमने क्या किया? एग पिकअप किया। इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हमने क्या किया? एग को पिकअप किया। मोर देन 1 एग्स विल बी पिकअप, ओके। देन हमने फादर से स्पर्म्स लिए, ये यहाँ पे स्पर्म, तो हमें स्पर्म मिल गए, एग मिल गए, इन दोनों को हमने फर्टिलाइज किया। देखिए ये सब कहाँ हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था। प्रीवियस इमेज में आप देख लीजिए। नाउ इट इज हैपनिंग आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द मदर्स बॉडी। वंस दिस स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, सबसे पहले क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट के क्या बाद क्या बनेगा? यहाँ आप देख लीजिए, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? मोरूला बनेगा, मोरूला के बाद क्या बनेगा? ये रहा आपका मोरूला, और मोरूला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। अब हम क्या करेंगे? वी विल इंजेक्ट दिस ब्लास्टोसिस्ट with the help of cannula. We will inject this blastocyst in the uterus, and now this blastocyst will get implanted into the mother's womb. अब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा मदर की यूटेरस में। This is in vitro fertilization. So in vitro fertilization is nothing but fertilizing the egg with the help of sperm outside the mother's body. उसे हम कहते हैं in vitro fertilization. We call this in vitro, और vitro term is used because it is done in a glass. Clear? So यहाँ पे आपको मैंने in vitro fertilization डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। I explained you in vitro fertilization in detail. अब बात रह जाती है थैलेसीमिया की। Now please focus what I am going to explain you in case of thalassemia, because UPSC might ask you a question on thalassemia but only for preliminary examination. अब थैलेसीमिया को बहुत डिटेल से समझ लीजिए, ठीक है। अनुराग, अब कुछ समझ में आ गया आपको? अनुराग चौधरी, आपको अभी कुछ समझ में आ गया? Now this topic is important only for your prelims 2021. Important for only for prelims 2021. Thalassemia. Okay, number 1. It is a inherited disease. So thalassemia is a hereditary disease. Number 1. It is a hereditary disease. इसका मतलब ये होता है कि this disease is caused by a mutated gene. अगर मदर और फादर बेबी को म्यूटेटेड जीन या एबनॉर्मल जीन पास ऑन करते हैं, तभी ये डिसीज हो सकता है। आज शिखर भटनागर नॉर्मल वे से इसलिए नहीं किया बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्लांट ओनली दैट एम्ब्रियो हुज बोन मैरो विल बी कॉम्पेटिबल विथ द बोन मैरो ऑफ अभिजीत। उन्होंने इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से 18 एम्ब्रियो डेवलप किए थे। उन 18 में से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो का बोन मैरो कंपैटिबल था अभिजीत के बोन मैरो से, इसलिए उन्होंने एक्सटर्नली किया। बाकी 17 एम्ब्रियो क्या किए? उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। अगर नॉर्मल वे से करते तो हमें ये नहीं पता चलता कि उस मदर के वुम में जो एम्ब्रियो है, उन मदर के वुम में जो एम्ब्रियो है, वेदर हिज बोन मैरो विल बी कंपैटिबल विथ द अभिजीत और नॉट, ये समझ नहीं पाते ना हम, इसलिए। वेरी गुड रुद्रानी, वेरी गुड, क्लियर। सो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिसीज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल जीन्स। नंबर 2, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन थैलेसीमिया? इन केस ऑफ थैलेसीमिया दैट पर्सन्स बॉडी विल नॉट मेक इनफ हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर अभिजीत को थैलेसीमिया था, इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है दैट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इनफ क्वांटिटी, एंड व्हेन हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इनफ क्वांटिटी, आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू कैरी enough oxygen, and when our body is not able to carry enough oxygen, so that person will remain exhausted, और ठीक है, वो बहुत ज़्यादा exhausted रहेगा। क्लियर? सो अभिजीत के केस में क्या हो रहा था कि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा था। अब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी काउंट भी क्या होगा? आरबीसी काउंट विल कम डाउन, आरबीसी काउंट भी क्या होगा? कम हो जाएगा।
सो थैलेसीमिया में सिम्टम्स क्या होते हैं? नंबर 1 लो आरबीसी काउंट, नंबर 2 लो हीमोग्लोबिन. दीज आर द 2 symptoms in thalassemia, and thalassemia is a hereditary disease. That's it. अब इस स्लाइड से आपको इतना ही समझना था. Okay, when there isn't enough hemoglobin, the body's RBC don't function properly and they last shorter periods of time, so there are fewer healthy red blood cell traveling in the bloodstream. So दोनों का काउंट कम होता है, RBC काउंट भी कम हुआ और हीमोग्लोबिन का काउंट भी कम हुआ. It is happening because of mutated gene or because of hereditary disorder called thalassemia. हो गया क्लियर? What is thalassemia? Everybody understood? Basic idea आ गई आपको thalassemia की. We are going ahead. So because there is a low count of hemoglobin, because there is a low count of RBC, जब RBC का काउंट कम होता है, या आप नॉर्मल देखिए मेल में जो है ना हीमोग्लोबिन नॉर्मली होता है आपका, जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की 12 to 16 होनी चाहिए, ठीक है. तो इससे अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? उस पर्सन को एनीमिया होता है. तो सी every person with thalassemia will have anemia. There are hundreds of reasons of anemia. Ramandeep, thalassemia is one of the reason for anemia. There are hundreds of reasons. Even nutritional, lack of nutrition या आयन नाम का न्यूट्रिएंट अगर हमारे बॉडी में कम जाता है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है. सो एनीमिया इज वन ऑफ द, एनीमिया का सिंपल मीनिंग क्या है? लो आरबीसी और हीमोग्लोबिन. ये किसी भी रीजन से हो सकता है. इन केस ऑफ थैलेसीमिया इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेटेड जीन. सो क्या होगा इस पर्सन को? अभिजीत को क्या था? एनीमिया था. ही विल फील टायर्ड बिकॉज उसकी मसल्स या उसकी सेल जब काम कर रही है तो दे नीड ऑक्सीजन टू फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी. लेकिन ज्योति स्मिता डेका, यस, अभिजीत सोलंकी के पेरेंट्स को थैलेसीमिया नहीं था, वो कैरियर थे, दोनों के दोनों थैलेसीमिया के, इसीलिए अभिजीत को थैलेसीमिया मेजर हुआ. विदाउट पेरेंट्स बीइंग कैरियर अभिजीत को कभी भी थैलेसीमिया नहीं हो सकता था. ठीक है, क्लियर? सो पहले तो थैलेसीमिया में उसे एनीमिया होगा. ही विल फील टायर्ड बिकॉज इनफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू energy, and his skin will become pale because count of RBC is low. RBC का काउंट कम होगा, एनीमिया होगा तो स्किन पेल होती है, आईज पेल लगती है, आपके जो ये नाखून है नेल्स है वो भी पेल लगने लगते हैं, एंड his spleen will become enlarged. क्योंकि RBCs की डेथ बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है तो स्प्लीन का ओवरलोड बढ़ेगा. स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं. तो स्प्लीन विल बिकम एनलार्ज एंड हिज स्किन विल बिकम येलोविश, यूरिन विल बिकम डार्क एंड स्लो ग्रोथ चिल्ड्रन में होगी. और अभिजीत में वही हुआ है. अभिजीत वॉज नॉट एबल टू अचीव द growth milestones. ठीक है, so this is all about thalassemia. Number 1, thalassemia is a hereditary disease. Number 2, in case of thalassemia, body is unable to produce enough hemoglobin, and because of that the count of hemoglobin as well as count of RBC goes down, and because of that that person with thalassemia will have anemia, his skin will be pale, he will feel tired, and his spleen will become enlarged. We are going ahead. थैलेसीमियाज आर जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, अब थैलेसीमिया की दो टाइप है. आर देयर डॉटर्स कैरियर? टू रुद्रानी, yes, definitely their daughter will be a carrier. Okay, so there are two types of thalassemia. One is alpha thalassemia and another is beta thalassemia. तो अब आपको अब तक पता था thalassemia is a hereditary disease. Number 2, the main problem with thalassemia is low production of hemoglobin, and number 3, there are two types of thalassemia. One is alpha thalassemia and number 2, recessive traits might be present. Yes, Aniket, they are present. Second is beta thalassemia. So thalassemia कितने टाइप का है? अल्फा एंड बीटा. अब आप कहोगे सर आपने तो थैलेसीमिया मेजर कहा था और यहाँ आप कह रहे हो कि अल्फा और बीटा ये दो ही टाइप के थैलेसीमिया. डोंट वरी, आई विल गो टू दैट पॉइंट ऑल्सो. अभी इतना याद रखिए, थैलेसीमिया दो टाइप का होता है, एक है अल्फा थैलेसीमिया एंड अनदर इज बीटा थैलेसीमिया. नाउ बहुत ही केयरफुली सुनिए. सीवियरिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ऑफ द. देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो है उसे हम अल्फा थैलेसीमिया कह रहे हैं, या सिंपल सी बात, आगे चले मैं आपको यहाँ शो करता हूँ. हाँ, देखिए, दिस इज अ हीमोग्लोबिन, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है. अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें आप देखिए अल्फा
ग्लोबिन 1, अल्फा ग्लोबिन 2, बीटा ग्लोबिन 2 एंड बीटा ग्लोबिन 1। कितने हैं? अल्फा ग्लोबिन 2 है और बीटा ग्लोबिन 2 है। ऐसे 4 मॉलिक्यूल हो गए ग्लोबिन के। दीज आर द प्रोटीन्स। और हर एक प्रोटीन के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा, हिम ग्रुप। दिस ग्रुप कंटेन्स आयरन। So hemoglobin, this molecule is made up of 4 proteins called 4 globin protein, जिसमें से 2 बीटा ग्लोबिन है और 2 अल्फा ग्लोबिन है, ठीक है, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिम, और हिम ग्रुप के 4 है जो विच कंटेन्स आयरन। हम कहते हैं ना आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होता है, करेक्ट। सो ये हो गया आपका अल्फा और बीटा। इसीलिए जब आपके थैलेसीमिया में जब ये 2 प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहे ना ठीक से, अगर ये अल्फा प्रोटीन नहीं आए तो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा, तो उसे हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा ग्लोबिन ये 2 प्रोटीन नहीं बन पा रहे तो हम उसे क्या कहेंगे? बीटा थैलेसीमिया। समझ में आया? सो हीमोग्लोबिन इज द मॉलिक्यूल which is made up of alpha, beta and the him group। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे पूरी क्लियर होती जाएगी चीजें, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये जो अल्फा ग्लोबिन है ना, दिस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ग्लोबिन, this protein is for the production of this for the normal production of this protein there are 4 genes which are responsible for the normal production of this alpha globin proteins। ये पहला पॉइंट। कितनी जीन रिस्पॉन्सिबल है अल्फा ग्लोबिन इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में? 4। उसी तरह बीटा ग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन। तो कितनी हो गई टोटल जीन? 4 + 6। सो देयर आर 6 genes which are responsible or which are necessary or which should be normal so that the both alpha protein as well as beta protein will be produced, and with the help of these 2 proteins our body will produce normal hemoglobin molecule which will be essential for carrying oxygen from one place to another, which will be essential to keep the RBC count proper। समझ में आ गया? अब ये 6 के 6 जीन हमें पता है। ऑल दीज 6 जीन्स वी नो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1 और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2 अभी विच इज गोइंग ऑन। So it is because of this human genome project 1 we know all the 6 genes which are responsible for the production of alpha globin and for the production of beta globin। Clear? So इस स्लाइड से हमें 2-3 चीजें पता चली। नंबर 1, थैलेसीमिया इज a genetic disorder। Why thalassemia is a genetic disorder? Because 6 genes are responsible for the production of proteins, which proteins are essential for the production of hemoglobin, and hemoglobin is essential for the production of RBC, and RBC are essential for carrying oxygen from one place to another place। What a cool and beautiful information explained in such a simplified way। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं इतनी सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कि आई होप कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो रहा है ना। चलिए आगे। तो कितने टाइप के थैलेसीमिया है? 2, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। हम अल्फा थैलेसीमिया कब कहेंगे? जब ये जो 4 जीन्स है इनमें से कोई भी एक जीन प्रॉब्लमेटिक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्फा ग्लोबिन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसे अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा ग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? हम बीटा थैलेसीमिया। क्लियर? वी आर गोइंग अहेड। तो अगर हमें डायग्नोसिस करना है कि कौन से टाइप का थैलेसीमिया, वेदर इट इज अ अल्फा थैलेसीमिया और इट इज अ बीटा थैलेसीमिया, फॉर दैट वी नीड टू डू जेनेटिक टेस्टिंग और प्रीनेटल टेस्टिंग, प्लस we need to do special hemoglobin test, जिससे हमें ये पता चले कि हीमोग्लोबिन में एग्जैक्टली कौन सा प्रोटीन कम है। नो सागर रथ, सिकल सेल एनीमिया इज कंप्लीटली डिफरेंट, थैलेसीमिया इज कंप्लीटली डिफरेंट। इन केस ऑफ थैलेसीमिया प्रॉब्लम इज विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम इज विद द शेप ऑफ द आरबीसीज। ये दोनों कंप्लीटली अलग है, हाँ, लेकिन ये जरूर है दोनों में एक कॉमन चीज है, वो ये कि दोनों हेरिडिटरी है और दोनों आरबीसी से लिंक्ड है। सागर रथ। क्लियर? सो हमें कैसे पता चल सकता है कि थैलेसीमिया अल्फा है या बीटा है? तो बाय
कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें पता चलेगा कि देयर इज अ थैलेसीमिया। बाय स्पेशल हीमोग्लोबिन टेस्ट वी कैन नो कि वेदर इट इज अ अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। एंड प्रीनेटल टेस्टिंग अगर हम कर ले बिफोर बर्थ, क्योंकि अगर हमें पता है कि पेरेंट्स दोनों के दोनों कैरियर है या पेरेंट्स में म्यूटेटेड जीन्स प्रेजेंट है, ये अगर हमें पता है तो हम बिफोर बर्थ प्रीनेटल टेस्टिंग कर सकते हैं और बिफोर बर्थ ही हमें पता चलेगा वेदर दैट बेबी हैज थैलेसीमिया और नॉट। सो दैट्स इट। अब तक आप लोगों ने समझा व्हाट इज थैलेसीमिया। इट इज अ हेरिडिटरी डिसीज इन विच देयर इज अ प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर आपको पता चला थैलेसीमिया में एनीमिया होता है, पेल स्किन होती है, टायर्ड फील होता है, एनलार्ज स्प्लीन होता है। फिर आपको पता चला थैलेसीमिया दो टाइप का है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। उसके बाद आपको ये पता चला कि 4 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा ग्लोबिन, 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा ग्लोबिन। और हमें ये कैसे पता चल सकता है वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन विल हैव अ बीटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया? थ्रू प्रीनेटल टेस्टिंग। Through prenatal testing. Can anybody tell me which is the best way to avoid genetic disorder, or which is the best way to avoid expression of genetic disorder in next generation? बताइए, जल्दी से बता दीजिए मुझे। चलिए हम आगे जा रहे हैं। Here you go. So beta thalassemia is caused by changes in HBB gene, while alpha thalassemia is caused by the mutations in HbA1 and HbA2 genes. Okay, अब यहाँ पे आपको इन दोनों जीन्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। कैसे? See, HBB, this gene is responsible for production of beta globin. This gene is responsible for production of beta globin. No, I am not talking about diagnosis, guys. I asked you how we can prevent by avoiding marriages in close relatives or by avoiding endogamy. आप जितने distant relatives में करोगे ना marriages, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक म्यूटेटेड जीन्स एक्सप्रेस नहीं होगी। हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम हमने हर एक कास्ट का अपना एक अलग जीन पूल बना रखा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट्स व्हाई इंटरकास्ट मैरिजेस आर अ मस्ट फॉर इंडिया इफ इंडिया वांट टू मेंटेन अ हेल्दी, जेनेटिकली हेल्दी पॉपुलेशन। इंटरकास्ट मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर ने बताया है कि इंटरकास्ट मैरिज करो, इसका मतलब ये नहीं कि उठकर किसी के साथ भी प्यार और मैरिज करोगे। उसी पर्सन के साथ आपने मैरिज करना चाहिए जो आपके साथ साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली और क्या कह सकते हैं हम, इंटेलेक्चुअली कंपैटिबल है। दिस इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। एक बार मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी चलेगा, साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी चलेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट को सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? व्हेन ही इज इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड। तो intellectual compatibility is very very important, and we should promote intercaste marriage that will prevent the expression of recessive genes in the next generation. ठीक है, so चलिए आगे। HBB gene, this HBB gene is responsible for the production of beta globin which is a protein. Beta globin is a protein and that's why अगर इस HBB gene में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे क्या कहते हैं? बीटा थैलेसेमिया। क्या कहते हैं उसे? बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये लेक्चर मम्मी पापा को मत दिखाओ, नहीं तो मम्मी पापा बोलेंगे ये सर तो बहुत शहाने दिख रहे हैं, इनके लेक्चर देखना बंद करो, क्योंकि ये तो आपको कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करो। ठीक है, it's all depend on your family. Okay, Ramandeep, test before marriage are done who are done for any genetic diseases now in India. That is very good, Ramandeep. Before marriage अगर आप genetic testing कर लेते हो ना, that is the best way to avoid expression of any genetic disorder in your next generations. तो बीटा थैलेसीमिया HBB जीन एंड अल्फा थैलेसीमिया के लिए HbA जीन है। ठीक है, यहाँ आप देख लिए HB मतलब हीमोग्लोबिन अल्फा एंड HbB मतलब बीटा, हीमोग्लोबिन बीटा एंड हीमोग्लोबिन अल्फा, हीमोग्लोबिन बीटा एंड हीमोग्लोबिन अल्फा। क्लियर? तो ये दो जीन्स के आपको नाम याद रखने हैं, एंड इट इज एन ऑटोसोमल। देखिए मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, हमारी सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, ओके,
हैप्लॉइड सेल में कम होते हैं। डिप्लॉइड सेल में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। अब ये जो 23 पेयर्स है, इन 23 पेयर में से 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स। हम उन्हें कहते हैं ऑटोजोम्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स। एंड जो एक पेयर है उस पेयर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वन पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होते हैं XY। इन केस ऑफ मेल ये सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं X एंड Y, एंड इन केस ऑफ फीमेल ये होते XX। तो ये जो आपका बीटा थैलेसीमिया या अल्फा थैलेसीमिया, ये जो जीन्स है ना, HBB जीन या HBA जीन, they are present on the autosome, not on sex chromosome. So it is a autosomal disorder. Thalassemia is a genetic disorder, but it is a autosomal disorder. Clear? अभिजीत को ये autosomal disorder है। अभिजीत सोलंकी को क्या है? दिस ऑटोसोमल डिसऑर्डर। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अभिजीत को बीटा थैलेसीमिया है या अल्फा थैलेसीमिया, आप खुद बता पाओगे, ठीक है, पढ़ने के बाद। एंड इट इज अ रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या है कि अगर दो जीन्स प्रेजेंट है, HbA1 दिस इज अ नॉर्मल जीन एंड HbA1 दिस इज अ रिसेसिव जीन। सपोज मदर ने ये जीन दी है और फादर ने ये जीन दी है, तो एक्सप्रेस कौन सी होगी? ये एक्सप्रेस होगी बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट जीन, बिकॉज इट इज अ हेल्दी जीन। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। समझ में आ गया? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर? अभी नहीं है अनिकेत, बिकॉज हमने वो स्टेम सेल थेरेपी से ट्रीट कर दिया। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। नंबर 1, प्लीज टेल मी वन थिंग, थैलेसीमिया इज अ नॉर्मल डिसीज और अ हेरिडिटरी डिसीज। नंबर 2, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मेन सिम्टम इन थैलेसीमिया। ठीक है, इज इट अ हेरिडिटरी डिसीज? ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड, मेन प्रॉब्लम इन केस ऑफ थैलेसीमिया, ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज टेल मी द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया ये आपको बताना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, वो ये कि विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा थैलेसीमिया एंड विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा थैलेसीमिया। वेरी गुड, इट इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। वेरी गुड, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। Yes, Rudrani, very good. The main problem in case of thalassemia is low count of hemoglobin, and this in turn leads to the low count of RBC. Very good, very good. उसके बाद guys, तीसरा क्वेश्चन है, वेरी गुड यशस्वी। अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, these are the two types of thalassemia. Very good, very good. एंड इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया जीन का नाम बताइए, और इन केस ऑफ अल्फा थैलेसीमिया जीन का नाम बताइए। HBB for beta thalassemia and HBA for alpha thalassemia. And last question for you guys, thalassemia is a autosomal disorder or it is a sex linked disorder? Thalassemia is a autosomal disorder or it is a sex linked disorder. I will give you some examples of sex linked disorder. Color blindness is a sex linked disorder. Then hypertrichosis is a sex linked disorder. ठीक है, ये दो मुझे पता है जो सेक्स लिंक्ड है, मतलब ये दोनों के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना, दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, नॉट ऑन द ऑटोसोम्स। चलिए आगे, तो ये पूरा क्लियर हुआ आपका, पता है आपको पता है कि आपका ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो गया। अभी तक हम सेवियर सिबलिंग पे गए ही नहीं है, हम थैलेसीमिया ही डिस्कस कर रहे हैं, और वो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग अहेड। नाउ HBB जीन, इस जीन को कहा जाता है हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा, हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा जीन और हीमोग्लोबिन बीटा जीन। ठीक है, दिस जीन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन कॉल्ड बीटा ग्लोबिन। मैंने ये ऑलरेडी बताया आपको, इज देयर एनी नीड टू एक्सप्लेन? नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट there is one gene which is responsible for the production of beta globin,
which is a protein present in the hemoglobin, and there is another gene which is responsible for the production of alpha globin, which is again a protein present in the hemoglobin. Sir, there might be the chances that this gene could express in family progeny further. Yes, definitely it will express, Aniket, इट विल डेफिनेटली एक्सप्रेस, क्योंकि अभिजीत में जब ये एक्सप्रेस हुई है, जब अभिजीत का मैरिज होगा तो एनी हाउ अभिजीत उसके बेबीज को रिसेसिव जीन ही देने वाला है। अगर उसकी वाइफ में भी कोई जीन होगा रिसेसिव तो उनके बेबी को हो सकता है। तो इसके बाद अभिजीत को जब मैरिज करना है तो अभिजीत शुड गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ हर पार्टनर, ऑफ हिज पार्टनर, देन ओनली ही शुड गो अहेड विद द मैरिज। तो ये आपको पता है। एचबीबी जीन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ प्रोटीन कॉल्ड बीटा ग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन सब यूनिट। मैंने आपको पहले ही बताया हीमोग्लोबिन में कितने प्रोटीन सब यूनिट है, 4। उसमें से 2 उन्हें हम कहते हैं अल्फा ग्लोबिन एंड दूसरे 2 है उन्हें हम कहते हैं बीटा ग्लोबिन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा ग्लोबिन एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा ग्लोबिन। सो अल्फा ग्लोबिन के 2 और बीटा ग्लोबिन के 2। बीटा ग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन एचबीबी और अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन एचबीए। इतना ब्यूटीफुली आपको ये कभी याद रहता? अभी मैंने बता दिया, ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। और आपके फैमिली या फ्रेंड में अगर किसी को थैलेसीमिया है, जैसे ही आपको पता चलेगा इमीडिएटली आपका दिमाग घूमने लगेगा और आप सोचने लगोगे पीछे इसे बीटा थैलेसीमिया है या अल्फा थैलेसीमिया। वो अगर गलती से आपको पता चल गया कि उसे बीटा है या अल्फा, फिर आप ये सोचोगे अच्छा इसमें कौन से जीन का प्रॉब्लम होगा, एचबीबी का होगा या एचबीए का होगा। इसे थैलेसीमिया है मतलब इसके मॉम डैड दोनों कैरियर है, इसके मॉम डैड कैरियर मतलब उनके साथ रिलेशन करना थोड़ा रिस्की है। समझ में आया सभी को? ये इंपॉर्टेंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने का, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, अ हेल्दी लाइफ। क्लियर गाइस? चलिए आगे। सो ईच ऑफ दीज प्रोटीन सब यूनिट्स इज अटैच्ड टू एन आयन कंटेन मॉलिक्यूल कॉल्ड हीम। ये भी तो 4 हमने देखे थे। एंड ईच हीम कंटेन्स एन आयन मॉलिक्यूल, इट इज सेंटर दैट कैन बाइंड। तो ये जो आयन मॉलिक्यूल है ना वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1, 2, 3 एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4 molecules of oxygen. And this hemoglobin is present on which cell? RBC, red blood cell. What is the lifespan of RBC? 120 days. Which is the graveyard of RBC? Spleen. RBCs are produced in bone marrow and RBCs they are nucleated, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं है। RBCs do not have mitochondria। तो मुझे बताइए can we use RBCs for analyzing DNA? अगर हमें ब्लड में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो हम आरबीसी यूज कर सकते हैं। कैन वी यूज आरबीसीज टू एक्सट्रैक्ट, कैन वी यूज आरबीसीज टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम ब्लड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ये है आपका क्वेश्चन, आप आंसर करोगे। सो ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन वाला। नाउ अल्फा थैलेसीमिया इनहेरिटेंस। How exactly alpha thalassemia is inherited from one generation to another? Very good यशस्वी and तनुजा। We cannot use RBCs क्योंकि RBC में DNA ही नहीं है। DNA एक तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में। अब RBC में न्यूक्लियस भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो हम यूज नहीं कर सकते। चलिए, now you already know कि alpha thalassemia is complex because condition involves 2 genes. In case of beta thalassemia there is only 1 gene, but in case of alpha thalassemia कितने जीन है? 2 जीन है, HbA1 and HbA2. People have 2 copies of HbA1 gene and 2 copies of HbA2 gene in each cell. एक सिंगल सेल में, जैसे ये सपोज मेरी एक सिंगल सेल है आरबीसी, ये सचिन सर की आरबीसी है, ठीक है। दिस इज सचिन सर्स आरबीसी। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे जैसे ही है ना, या नहीं? बिल्कुल। सो इस आरबीसी में, मेरी आरबीसी में HbA1 कितने जीन्स है? 2 कॉपीज है HbA1 की। और HbA2 जीन की कितनी कॉपीज है?
2, तो टोटल मेरे बॉडी में या मेरे सेल में कितनी जीन्स होगी? HbA 4। अब ये जो HbA1 की 2 कॉपीज है ना मेरे पास, देखिए मेरे पास 2 कॉपीज है, ये 2 कॉपीज है ना, वन इज रिसीव्ड फ्रॉम माय मदर एंड अनदर इज रिसीव्ड फ्रॉम माय फादर, इसलिए मेरे पास HbA1 की 2 कॉपीज है। उसी तरह मेरे पास जब हम ये कहते हैं कि HbA2 की 2 कॉपीज है, HbA2 की 2 कॉपीज है, सर एट हायर अल्टीट्यूड वी ऑल्सो फील ब्रेथलेसनेस फॉर अ while but later it settled, yes because at higher altitude there is a low concentration of oxygen, it's because of that। ठीक है, अब ये जो 2 कॉपीज है, एक मेरी मॉम ने दी है मुझे, देखिए सचिन सर को मॉम ने HbA2 की 1 कॉपी दी है और उनके डैड ने भी सचिन सर को क्या दी है? HbA2 की 2 कॉपीज दी है। ठीक है, क्लियर? तो ये HbA2 की 2 और HbA1 की 2, तो टोटल जीन्स हो गई मेरी खुद की बॉडी में। अभी देयर आर 4 जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन। लकीली अभी तक मैंने किया नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये कि मेरे बॉडी में चारों के चारों जीन्स क्या है? डोमिनेंट है, हेल्दी है, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया नहीं है, मेरे दूर दूर के किसी भी रिलेटिव्स में किसी को भी थैलेसीमिया नहीं है। ओके, एज डिफरेंस डजंट मैटर सिनाती, इट डजंट मैटर। ओके, तो देखिए देन ईच कॉपी इज कॉल्ड एन अलील। अब अलील मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। HbA1, ओके, 1 copy from mother, this is HbA1 from mother and this is HbA1 from father। दोनों सेम ही है ना, सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये फादर ने दी है और ये मदर ने दी है, तो ये क्या हो गए? अलील्स हो गए। ये क्या हो गए? अलील्स हो गए, किसके? HbA1 जीन के। उसी तरह HbA2 के भी हो गए, HbA2 और HbA2 सेम जीन की जब 2 कॉपीज हमारे पास आती है ना, तो हम उसे कहते हैं अलील। कपल है ये, अलील। ठीक है, देन सो अभी मेरे बॉडी में अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए कितने अलील प्रेजेंट है? 4 अलील्स प्रेजेंट है, 4 अलील्स, 2 अलील HbA1 के और 2 अलील HbA2 के। इन अलील और इनके टेक्निकलिटीज में मत चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अल्फा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स कौन सी है? HbA1 एंड HbA2, दीज आर द 2 जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा थैलेसीमिया। ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब अल्फा थैलेसीमिया में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं। For each of 2 genes, 1 allele is inherited from father and another is inherited from mother. So each person inherits 2 alleles from each parent. You know this. Then different types of alpha thalassemia result from loss of some or all of these alleles. Loss of all of the alleles का मतलब क्या है? Either all these alleles are mutated or some alleles are mutated. एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अलील्स म्यूटेटेड डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आपको अल्फा थैलेसीमिया है। इस टेक्निकल चीज़ों का टेंशन मत लीजिए, ये यूपीएससी कभी भी नहीं पूछने वाली। जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि व्हाई इट इज़ अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर किसी पर्सन को टोटल अल्फा थैलेसीमिया के लिए कितने जीन्स है मेरी बॉडी में, हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट और हाउ मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन इन आवर बॉडी, इन माय बॉडी 4 जीन्स है। अब इन 4 में से अगर एक म्यूटेटेड अलील है, मतलब इन 4 में से एक म्यूटेटेड जीन है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो सकता है और 3 नॉर्मल जीन है, तो मुझ में यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल साइन और सिम्टम, यू विल फाइंड दिस पर्सन अ हेल्दी पर्सन। इसे थैलेसीमिया नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही जीन है जिसमें म्यूटेशन, बाकी 3 तो नॉर्मल है, बाकी 3 क्या है? नॉर्मल है। तो फर्स्ट कंडीशन में दैट पर्सन विल बी हेल्दी विदाउट एनी साइन और सिम्टम। अब सेकेंड केस है, सपोज 2 mutated alleles may have mild signs or symptoms of alpha thalassemia called alpha thalassemia minor or alpha thalassemia trait. So देखिए when I say this person A has 1 mutated allele of HbA gene, तो this A is healthy, लेकिन B है, इसमें 2 mutated allele है। ठीक है,
HBA जीन के जो 4 अलील्स है उसमें से 2 म्यूटेटेड अलील है, तो हम कहेंगे बी पर्सन जो है ना इसे थैलेसीमिया माइनर है। क्या कहेंगे हम इसे? थैलेसीमिया माइनर है, या फिर हम कहेंगे इसे थैलेसीमिया ट्रेट है। दोनों नाम सेम है, थैलेसीमिया ट्रेट है, और ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। दिस इज नॉट अ बिग डील, थैलेसीमिया माइनर इज नॉट अ बिग डील। तो जब 2 म्यूटेटेड अलील्स होते हैं तो थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट, बिकॉज दिस म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन HBA, दैट इज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा ग्लोबिन, हमने इसे नाम दिया अल्फा थैलेसीमिया माइनर और अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? Yes, I know you guys are getting it. It is so simple. दूसरा, अगर किसी पर्सन में 3 म्यूटेटेड अलील्स है, 3 म्यूटेटेड अलील्स है, तो हम उसे कहते हैं HBH डिसीज, जिसमें मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम होते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभिजीत में 3 म्यूटेटेड अलील्स है, लेकिन अभिजीत को अल्फा थैलेसीमिया नहीं है, बीटा थैलेसीमिया है। ठीक है, चलिए। और अगर चारों के चारों म्यूटेटेड अलील्स होंगे तो हम उसे कहते हैं थैलेसीमिया मेजर। क्या कहते हैं हम उसे? थैलेसीमिया मेजर। अभिजीत को क्या है? थैलेसीमिया मेजर ही है, लेकिन अभिजीत का बीटा वाला है, अल्फा नहीं है। अभिजीत के अल्फा थैलेसीमिया में प्रॉब्लम नहीं है, या इसी को हम कहते हैं हाइड्रॉप्स फीटालिस। थैलेसीमिया मेजर या हाइड्रॉप्स फीटालिस, दीज आर द सेम टर्म्स फॉर द डिसीज जिसमें चारों HBA जीन्स क्या है? म्यूटेटेड है। चारों HBA जीन्स म्यूटेटेड है। What is the meaning of alpha thalassemia inheritance? Sunitha Muddy, it means how exactly alpha thalassemia is inherited from mother to babies or from parents to babies. Okay, Sunitha. चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? पर्सन X है, this person X has only one mutated gene, only one mutated allele out of four HBA, तो X को क्या कहोगे आप? पर्सन Y है, इसमें 2 म्यूटेटेड अलील्स है। पर्सन Z है, इसमें 3 म्यूटेटेड अलील्स है। और पर्सन W है, इसमें 4 म्यूटेटेड अलील्स है। तो मुझे बताइए X में क्या होगा? नो साइंस एंड सिम्टम्स, सो X विल नॉट हैव थैलेसीमिया। Y में देयर विल बी मॉडरेट, मतलब माइल्ड सिम्टम्स और साइन होगी, इसे हम क्या कहते हैं? थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। ठीक है, अगर 3 म्यूटेटेड अलील है तो इसे हमने नाम दिया था HBH डिसीज, और अगर 4 म्यूटेटेड अलील्स है तो उसे हमने एक नाम दिया था थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। नाउ आई होप यू गॉट basic idea when we say thalassemia minor, when we say thalassemia minor और when we say thalassemia major, तो दोनों के अल्फा के केस में आपको पता चल गया कि किसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं और किसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। क्लियर? ये चारों म्यूटेटेड अलील आने के लिए दोनों मॉम और डैड से आपको क्या मिलने चाहिए? म्यूटेटेड जीन्स मिलने चाहिए। चलिए आगे। अब बीटा थैलेसीमिया में, बीटा थैलेसीमिया मेजर को हम कूलीज एनीमिया कहते हैं और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीटा थैलेसीमिया वाला पार्ट है वी विल डिस्कस टुमारो। देन बीटा थैलेसीमिया के टाइप वी विल डिस्कस टुमारो। थैलेसीमिया मेजर क्या होता है वी विल डिस्कस टुमारो। थैलेसीमिया इनहेरिटेंस कैसे होता है वी विल डिस्कस टुमारो। देन अगेन हम उस न्यूज़ पे वापस आएंगे, पूरा डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे। फिर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या होता है एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर से हम रिप्रोडक्टिव थेरेपी पे आएंगे, HLA मैचिंग क्या होती है, HLA आइडेंटिकल डोनर क्या होता है। उसके बाद हम थाईलैंड की जोग्राफिकल मैपिंग कर लेंगे। उसके बाद हम पेनिनसुला, थाई पेनिनसुला या क्रा इस्तमत देखेंगे, थाई कैनाल की बात करेंगे, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला की बात करेंगे, मेजर पेनिनसुलास ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, तैवान और तैवान स्ट्रेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फार्मोसा स्ट्रेट क्या है, स्कारबरो, स्पार्टली, पार्सल आइसलैंड, ये सब देखेंगे। और उसके बाद हम मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जैक्टली कैसे काम किया जाता है, क्या क्या इश्यूज है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कब? कल। बिफोर यू गो अहेड,
बिफोर यू गो अहेड, ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अंकिता दुबे, सर बीटा के 2 जीन हैं तो 3 म्यूटेटेड कैसे हुए? यशस्वी, 3 म्यूटेटेड जीन, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। बीटा बी की अभी हमने बात ही नहीं की, है ना। बीटा के 2 जीन है और अल्फा के 4 है, ठीक है। यस रुद्रानी, करेक्ट। सो नेक्स्ट अंकिता, ऑटोसोमल का मतलब होता है इफ सम जीन इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम और उस जीन के म्यूटेशन की वजह से अगर डिसीज होता है तो उसे कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और रिसेसिव का मतलब होता है एवरी म्यूटेटेड जीन इज रिसेसिव, मतलब एक म्यूटेटेड जीन है और एक हेल्दी जीन है तो हमेशा हेल्दी जीन एक्सप्रेस होगी, तो इसलिए उसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। और म्यूटेटेड जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाती इन केस डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, तो इसलिए हम उसे रिसेसिव कहते हैं। तो बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोमल, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम एंड इट इज रिसेसिव, हम इसलिए टर्म क्या यूज करते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर। सो कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा 8 AM का सेशन होगा, you will get that update on Telegram as well as on WhatsApp. What you need to remember is this code. Please use SKUS code for 10% discount on Unacademy, and anywhere where you cannot use SKUS code, don't use that method for getting subscription. For example, आपको अगर कॉल आता है कि लोन पे आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, don't opt for that because there you cannot use this code. So आपको वो लोन के ऑप्शन में जाना नहीं है। Then जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बच्चों, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल, ताकि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ना इसकी PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट सर्च माय प्रोफाइल, इस लिंक से आप सर्च कर सकते हो। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, डेडिकेट योर हैट्स टू मी ऑन अनअकैडमी, एंड डोंट फॉरगेट to use SKUS code for 10% discount on Unacademy subscription, whether you're going for plus subscription or sir, what is youth mediathon? I need to go through it. Is it about on Unacademy, Navisha? ये Unacademy की बात कर रहे हो आप? थैंक यू अनिकेत, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। 10% डिस्काउंट के लिए आपको SKUS कोड यूज करना है एंड डोंट गो फॉर लोन ऑप्शन बिकॉज देयर यू कैन नॉट यूज SKUS कोड। सो आप आपका डेबिट कार्ड यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, UPI यूज कीजिए, पेटीएम यूज कीजिए, कुछ भी और मेथड यूज कर दीजिए जहाँ पे आप ये कोड यूज कर सकते हो। डोंट गो ऑप्ट फॉर लोन ऑप्शन, ओके। सागर रथ विल डू वन थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्टेम सेल टुमारो। कल के सेशन में हम इनिशियली स्टेम सेल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, थैंक यू वेरी मच। वी आर मीटिंग टुमारो मोस्ट probably at 8 AM and after that at 11:15 AM on YouTube. Till that time, bye bye.